مسز مسرت، کیونکہ آج میرا شو ہی ایسا ہے کہ دکھتی رکھتے اپنے لوگوں کے ہاتھ رکھتی ہے. مسز مسرت ہمارے سے چنیوٹ سے کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم مدیحہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست پروگرام چل رہا ہے جی، بہت لوگوں کی دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. بالکل. ہاں اچھا، تو میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جی جی. ہم لوگ بھی ادھار دیتے ہیں، میں نے جاب بھی کی ہے، تو میرا ایکسپیرینس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. مطلب لوگوں کو جب میں ادھار دیتی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو یہ آسانی سے ایک دو دفعہ میں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز مجھے ان سے نکلوانا ضرور ہوتا ہے. میں یہ طے کر کے بیٹھی بھی ہوتی کہ ان سے نکلوانا ہے، یار ان کو کھانے نہیں دینا. ویری گڈ ویری گڈ اپنے پیسے. ویری اچھا، اس کے لیے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بھی دیکھتی تھی کہ ان کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا جائے نا. تو پہلا تو یہ ہوتا تھا کہ جس وعدے پہ انہوں نے ہم سے ادھار لیا اس وعدے پہ ضرور اس کو یاد دلانا ہے کہ جی آج وعدے کی ڈیٹ ہے، آپ نے ادھار لیا تھا تو آپ مجھے پیسے دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں اس کو پھر یہ یاد دلا دیں، دیکھو بھی قرض اگر آپ نے لیا ہے تو آپ نے اس ڈیٹ پہ واپس کرنا ہے، ادروائز نہ آپ کا نماز قبول ہے نہ آپ کا روزہ قبول ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے مزید اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ مجھ سے مزید ٹائم لے لیں. اچھا، انہوں نے ٹائم لے لیا، 2 دفعہ لے لیا، 3 دفعہ لے لیا. اب ہوتا کیا تھا، پھر بھی وہ نہیں دے رہے نا، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ کتنے لوگوں میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ان لوگوں کے درمیان جا کے میں نے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑتا تھا اس کو سبق سکھانے کے لیے کہ ہاں بھی ذرا ادھر آؤ نا، ذرا میری بات سنو نا تم. ویری گڈ. تو وہ جناب آتے تھے اور میں کہتی تھی ہاں بھی ذرا تھوڑی لاؤڈ آواز میں، تم نے ادھار لیا تھا مجھ سے واپس نہیں کیا تم نے ابھی تک. اچھا، وہ اتنا چھٹپٹا جاتے تھے ایک دم سے، یار یہ کیا ہو گیا، کتنے سارے لوگوں کی بات ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے اپنی بہت سی جو میری جونیئر ٹیچرز تھیں، انہوں نے ایک ٹیچر نے تو پورے کالج سے ادھار لیا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر جب میں وائس پرنسپل بنی تو سب نے آ کے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے مجھ سے بھی ادھار لیا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے بھی ادھار لیا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے بھی ادھار لیا ہوا ہے، اور یہ پکڑائی نہیں دے رہی ہیں. تو میں پھر ان کے آفس میں پہنچ گئی. وہ میں نے کہا بھی یہ کیا مسئلہ ہے، اتنے لوگوں کا آپ نے ادھار دینا ہے تو آپ دیں. جی میم دے دیں گے ایسا. لیکن میں نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا. میٹنگ میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں انہیں کہتی تھی کہ جس نے جس کا ادھار دینا ہے وہ دے دیں، ادروائز میں اگلی میٹنگ میں بائی نیم ان سے ادھار وصول کروں گی اس بندے کا نا. تو یہ ساری چیزیں کر کے آپ یقین کریں میرے پیسے کبھی بھی نہیں ڈوبے، نہ میرے میاں کے ڈوبے، نہ کبھی میرے ڈوبے، نہ میں نے اپنی کسی ٹیچر کے پیسے ڈوبنے دیے. کیا بات کروائی میں نے نا. آئے صدقے جاؤ. مسز مسرت، اب میری زندگی میں آپ ہی کی کمی ہے. آپ مجھے اتنی دیر سے ملی، زندگی سے یہ گلا ہے مجھے. آپ انٹرسٹڈ ہیں اگر کسی اور جاب میں تو پلیز میرے کلینک میں بیٹھ جائیں. آپ کی اتنی ہائی ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں آج ہے مہینے کی 31 تاریخ، تو یہ وہ ڈیٹ ہے کہ اس میں نا کیونکہ لوگوں نے ادھار بھی پکڑے ہوتے ہیں اور وعدہ لوگوں سے کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلی اپریل کو نا. تو اب اس وقت جو لوگ ہیں نا بہت سارے ویسے بھی چھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چھڑ گئے لوگ کہتے ہیں اچھا بھی ہمارے بھی جو ادھار کی جو ڈیٹ ہے وہ واپس آنے والی ہے. اچھا، کوئی ایسا طریقہ ریکوری کا آپ مجھے لگتا ہے سمے یہ آپ میں پوٹینشل ہے. بی مائی مسز مسرت. اصل میں میرا جو کنسرن ہے نا وہ یہی ہے کہ میں پہلے ہی دفعہ میں ہی منع کرتی ہوں. مطلب مجھے یہ بات بری لگتی ہے، the art of saying no. مجھے سمپل ہی ہوتا ہے کہ جب میں پوری بات سن لیتی ہوں میں کہتی ہوں دیکھیں مجھے پیسے میں اپنا تو کماتی نہیں ہوں، پہلی چیز تو یہی ہوتا ہے. میرا بزنس ہے وہ ارن کرتا ہے تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کس ریزن سے پیسے نکال کے آپ کو دے رہی ہوں، اور میری بزنس کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو ادھار دیں. تو اس لیے میں باؤنڈ ہوتا ہوں. میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی. ہاں کوئی فزیکل آپ کو میری ہیلپ کی نیڈ ہے یا کہیں آپ کو مجھے لے کے جا کے میں کہیں بات کر سکتی ہوں، آپ کے کام کو آسان کر سکتی ہوں تو بتائیے، آئی ایم اویلیبل.
ओह ये आई लाइक इट। तो बहुत अच्छा है ये क्लिप एडिट करके हम सबको तो ये इससे ये होता है कि दूसरे वाला आदमी को आपने बावर करा दिया कि आप एक सिंपल प्रोसेस हुआ ना, हमें सैलरी मिलती है, हमें चेक मिलता है, हम चेक डिपॉजिट कराते हैं, एक प्रोसेस है ये। तो आप अगर किसी भी कंपनी के पेटी कैश से भी निकालेंगे तो आपने उस बंदे को बताना तो है ना कि ये रीजन क्या है। अगर आप पर्सनल भी निकाल रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा, उसका बैंक उसका सिस्टम खराब होगा। मेरा पेटी कैश नहीं है ना, मेरा उस तरह का सिस्टम है, लेकिन फिर भी मुझे दूसरों को मना करना कि उनको जलील भी फील ना हो, वो इंसल्ट भी फील ना करे, उनके वकार भी वही रहे, हमारा रिलेशन भी वही रहे, और आप बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप उनको बना। ये आपने बुरे एक्सपीरियंस से सीखा, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो आपसे पैसे लेके लिटरली आपसे बात करना खत्म कर देते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। एक चीज और लगती है कि आप उधार वापस भी कर देते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी लेते हैं, आप ले लेते हैं अपने घर वालों से ले लेते हैं, अगर आपको हम शायद बता नहीं पा रहे लेकिन हम सब भी लेते हैं, अपने शौहर से भी लेते हैं, अपने माँ बाप से भी लेते हैं, अपने भाई बहन से, तो उनको भी देते हैं और हम उन्हें वापस भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ये वो उधार होते हैं जो हम शायद कंसर्न भी नहीं करते, लगता है शायद तुम्हारी जिंदगी का ये हिस्सा है और हम उनको उधार में ले। लेकिन मुझे लगता है मैं उधार जो लोग लेके भाग जाते हैं या जो लोग वक्त से पहले भी दे देते हैं, वो रिलेशन तब भी खराब हो जाता है। अच्छा, एक तरह से उधार देने का सबसे ज्यादा दुख जो है ना, वो मुझे इस चीज का होता है कि जब कोई नौकर आता है, कोई कुक आता है, कोई भी होता है ना, तो वो उधार मांगता है कि जी बाजी मुझे 2-3 महीने की साथ ही कार्रवाई डालते हैं। हाँ, आते ही 2 महीने। अब इतनी तकलीफ होती है ना कि अगर 2 महीने का उधार दे दिया तो इसने देना तो है नहीं है, और अगर नहीं देंगे तो काम छोड़ के चला जाएगा। मतलब इतना आपको ब्लैकमेल करते हैं ना नौकर के, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो स्पेशली जैसे अगर बच्चों की नैनीज वगैरह जो होती हैं वो आपको बहुत ऐसे आपसे उधार लेती हैं और आप उसमें ना परेशान हो जाते हो, क्योंकि और स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो ऐसे लोग आपको बड़ा मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आपने बात की ना शेफ, बच्चों की नैनी, वो ऐसे टाइम से आपको उधार लेगी, आपको डरोगे। मेरे साथ है। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं बच जाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं उधार के हवाले से और वो लोगों के वाकयात किस्से कहानी, अगर आपको लगता है कि आप लोग ही वो वाहिद लोग हैं कि जिन्होंने किसी को उधार दिया और अगला पैसे लेके भाग गया, या फिर अगले ने आपसे बात करना छोड़ दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में तो शायद ही आपको शाज़ो नादिर को ऐसा शख्स नजर आएगा जिसने कभी उधार ना मांगा हो। इसका रीजन भी है क्यों पाकिस्तान में लोग इसलिए उधार दे रहे हैं, अमीर लोग हैं, बाहर गरीब लोग रहते हैं, बाहर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते उधार देना, क्योंकि अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत है। सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज, जो लोग बाहर रहते हैं रिश्तेदार हमारे, तो वो हम लोगों को गुर्बत ज्यादा समझते हैं, ये सबको। हाँ, और उनको वो इसलिए फील कराते हैं, मुझे अब वो इंटेंशन समझ आया कि वो सही करते हैं, वो कहते हैं हमसे डॉलर ना मांग लें। तो हमें भी चाहिए कि आप बाहर वालों से मांगे क्या, बेचारों के टैक्सेस और इंस्टॉलमेंट्स में तो उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं। वो वहां से कभी पाकिस्तान वापस नहीं आते, वो बल्कि वहां से और ग्रो करते हैं, दुनिया घूमते हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है। लेकिन एक चीज जो मैंने कॉमन अपने रिश्तेदारों में देखी, एक ही बात कि वो हमें फकीर और फुरका समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल फकीर हैं, हम डॉलर ना मांगे। आपके समझते होंगे? जी, सभी के होते हैं। नहीं, ऐसा सबके होते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको ये भी वो वाकई देख रहे होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और जो हमारी शादियां देखते हैं। अच्छा, मैं जरा शादियों के वाले से बात भी करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो हमारे टेलीविजन के आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं, जब आप उनकी लेविश शादियों को देख रहे होते हैं कि उनके 10-15 फंक्शन चल रहे हैं, तो भाई उनके चल रहे थे स्पॉन्सर्ड। ये मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगी, माँ बाप को मैंने लिटरली देखा कि अब बच्ची का डिजाइनर जोड़ा लेने के चक्कर में बच्ची ने एक इवेंट ज्यादा कह दिया तो माँ बाप उधार लेते हैं। भाई आप जिनको देख देख के उधार ले रहे हैं ना, क्योंकि वो चादर दे के पाँव फैलाने की जो हम बात कर रहे हैं, आप जिनको देख के उधार ले रहे हैं ना, उनका अपनी जेब से टगा पैसा नहीं गया, ठीक है। वो मैं कहती हूँ जो अल्लाह के इस मामले में शुक्र है। जैसे अब मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई देखिए, जब मैंने रोज कपड़े पहने होते हैं ना, कभी शाज़ो नादिर में अपना भी ड्रेस पहन लेती हूँ, मुझे रिपीट करने का शौक है, तो मैं खुद से देखती हूँ कि अच्छा 4-5 महीने पहले मैंने पहना था, तब शो में पहना ऐसा लग रहा था, बट ये में डिजाइनर्स देते हैं, हम पहनते हैं, हम इनकी अच्छी सी पिक्चर्स लगाते हैं एंड वी गिव देम बैक। तो अगर आपको लग रहा होता है कि हाई जिसने बना लिया तो मैंने भी ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं है। प्लीज अपनी चादर देके पाँव फैलाएं। और अगर शादियों की बात हो, मैं अक्सर लोगों को देती हूँ बच्चों की सालगिरह, तुमने बहुत अच्छी बात की है, कर रहे होते हैं। यार मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि जब मेरी शादी हुई थी तब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, मेरा सब सारे पैसे सारा बार्टर नहीं। मेरी लेकिन एक बात है, शादियों के मामले में आई थिंक इट शुड बी, हम लोग को अब प्रमोट करना चाहिए, आप सिंपल शादी करो, चाहे आप किसी भी। अच्छा, वैसे मैंने देखा शादियों का हो गया है, मेक इट सिंपल। शादियां बिग फंक्शंस पे आ गई हैं यार, आप जरूर गई, बट वो इतनी लेविश होती हैं, 10 कोर्स मील चल रहा है, कुछ लोग खर्चे चल रहे हैं, उधार लेके उम्रा
हज ज़ियारत पे भी जा रहे हैं। अच्छा, इस कैटेगरी के तो लोगों को मैं इंसान ही नहीं समझता, सॉरी, कि आप किसी से उधार लेके, और जब आप किसी से ये उधार मांगते हैं, कोई ज़ियारत, ये कोई उम्रा, ये कोई हज उधार पे, बल्कि हज और उम्रे और ज़ियारत पे आप जाएं तो लोगों के उधार वापस करके जाएं। एक बात मुझे बताइए, आपकी किसी के तरफ आपके पैसे ड्यू हैं, उसने आपके पैसे वापस करने हैं, वो आपको पैसे वापस वो नहीं दे रहा, ये मतलब वैसे ही वापस नहीं भी करने थे, बट देने से उसने, अब वो जा रहा है उम्रे पे भी, 10-10 गाय भी ज़िबा कर रहा है और हज भी हो रहा है उसका, फिर आप उससे पैसे मांगो और फिर आपको कि आप तो उम्रा हज सब कुछ करके आ रहे हो, फिर वो आगे से कहते हैं वो तो मेरा और अल्लाह के बीच में है। नहीं तो भाई मेरा मामला कहाँ है? तो मिसेस मुसरत कि आप उसको कहें भी ना आपका हज उम्रा कबूल है, आपका कुछ आपकी ना इबादत कबूल है, ना आपकी रोजे कबूल है, ना आपकी नमाज। मैं माफी नहीं करूँ जब आप कोई आप किसी के आप अक्सर लोगों खवातीन का तो कब्रिस्तान जाना कम होता है, जब तदफीन का वाकया होता है तो उस वक्त आप देखें लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि अगर इनका किसी से कोई लेन देन था तो आप हमें बता दीजिए ताकि हम वो आपको क्लियर कर सकें, क्योंकि वो एक वाहिद एक जरूरी चीज होती है जो एक क्लियर करनी जरूरी होती है। अब वहां जितने लोग खड़े हैं वो अपनी मोहब्बत में कहते हैं कि यार दिल में ही कहते हैं कि नहीं यार मैंने माफ किया, हम कोई बाब बुलंद नहीं कहना चाहते, हम इनको अब मरने के बाद शर्मिंदा नहीं करना चाहते, तो दिल में कहते थे हमने माफ कर दिया। वो नियतों पे जिंदगी चल रही है ना पूरी, तो ये इतना जरूरी है। तो आपकी क्या आप जब मरने पे नहीं बख्शा जा रहा तो ये कैसे आपकी उम्र और हज पे? सबसे बड़ी बात जो है ना, जब ईद पे कुर्बानी के लिए उधार लेके तो बकरे लिए जाते हैं, आप ये सोचें कि क्या जरूरत ऐसी कुर्बानियों की, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कोई एग्जैक्ट हदीस यहाँ नहीं कोट कर सकती, बट इट वाज लाइक अगर कोई शहीद भी होता है, वो मर जाए, वो दोबारा जिंदा हो, वो मर जाए, वो दोबारा जिंदा हो, मर जाए, वो दोबारा जिंदा हो, लेकिन वो तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक उसके ऊपर किसी एक इंसान का 1 रुपए का भी कर्ज है। भाई तो वाकई हम तो दुकानों में कभी ऐसा ना कि भी ज्यादा पैसे दे दिए, ये नहीं कि कोई फरिश्ते हैं, लेकिन अगर किसी ने 100 रुपया ज्यादा दे दी तो मैं पता यार कि अकाउंटेंट जो है ना आप देने वापस जाते हैं कि भाई अगले से हिसाब किताब कि वो 100 रुपये ऑडिट में वो किधर गए। अच्छा, ये कुछ ऐसे भी क्या मैं बोलूँ, मैं तो आई एम सॉरी बट लेट मी से कि ऐसे बेगैरत लोग भी होते हैं कि जब अभी आपने जनाजों की बात की ना कि जब वहाँ पे अनाउंस किया जाता है और कुछ लोग ताक में होते हैं कि अच्छा अगर बंदा मर जाए तो फिर जाते हैं, आपको पता है फलाने ने ना, अच्छा उसमें चीटिंग केसेस भी हैं, चीटिंग के ही केसेस हुई बात है ना, तो लोग फिर इस आड़ में लोग पैसे भी निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली आप की तो कब्र पे पता नहीं फिर कैसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। गिल्ट में कभी मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि ना जाने का तरीका कि किसी से उधार वापस मांगते हुए, और आर्ट ऑफ सेइंग नो कैसे हो सकता है, ये अब जुगाड़ बताएं, ये खुद भी सीखना है और बताना भी है। मुझे नहीं पता, मैं तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट बिकॉज आई कैन नॉट से नो। और अब जाके बस वो जो बुरे बनने वाला एलिमेंट है ना, वो भी नहीं हो पा रहा है। आई थिंक तभी तो मैं आप सबसे पूछी मुझे बताएं मैं क्या करूं, बिकॉज आई एम अनेबल टू से। लेकिन जो दोस्त बात करना छोड़ देते फिर उनको कैसे डील करती है? नहीं, फिर बात नहीं करते। अगर किसी रिश्तेदारों ने आपसे, बहुत करीबी रिश्तेदार ने आपसे उधार लिया, उधार बार बार कहकर उधार अभी दे देंगे और आपने मुश्किल वक्त में उधार, वो फिर आप इन दी एंड मध्य रिश्तेदारी खराब हो जाती है। अगर लाइक इट्स योर फ्रेंड्स, इफ इट्स योर कजन्स या जो भी है, रिश्तेदारी खराब हो जाती है बिकॉज उनमें एक अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है और आप होते हो यार मैंने तो दिया है तो फिर किस चीज़ का एटीट्यूड है, तो वो इवेंचुअली रिश्तेदारी खराब ही होती है। मैंने इस चीज़ को हमेशा खराब ही होते देखा है, इसका अच्छा एंड नहीं है, क्योंकि ना मैं मांगने वालों में से ना वो अगला देने वालों में से, दोनों अंदर सड़ सड़ के यू नो वो इट्स जस्ट वर्स। लेकिन वैसे एक बात है कि इंसान को ज़रूरत किसी को भी किसी वक्त भी पड़ सकती है। तो मतलब मेरा पहले ये होता था कि मैं सोचती थी कि यार बैंक में कोई बच्चे तो नहीं देते किसी के काम आ जाए, लेकिन वो काम आने की वजह से ना इतना ज़्यादा इंसान तकलीफ में आ जाता है कि फिर जाहिर है कि आप उधार वाले बन जाते हैं कि लेकिन बस होना ये चाहिए कि अल्लाह मियाँ किसी को ना इस साइड ना उस साइड मोहताज ही ना करे किसी का, और आप तब मोहताज नहीं होते जब आपको अपनी औकात पता होती है। सही बात, जब आपको अपनी औकात पता है ना कि मैं नहीं इस वक्त ये चीज़ कर सकता और आप खामोशी से बैठ जाएं, अपने घर वालों को भी समझाएं कि नहीं हो सकती, तो वो खत्म हो गई। अच्छा, सोशल मीडिया ने बड़ा गंद किया हुआ है ना, दे हैव टू कीप सोशल मीडिया। सिर्फ देखें सोशल मीडिया उन लोगों को मुतासर कर रहे हैं जिनके अंदर एहसास कमतरी है, जिनके अंदर एहसास कमतरी नहीं है उनको हमारे 80% लोग तो मेजॉरिटी तो वही है ना, मेजॉरिटी पार्टीज का बड़ा सीन है, ठीक है। हमारे मुल्क में ऐसी औरतें आती हैं, हमें कराना बहुत जरूरी है। देखिए हमने किटी पार्टी पे जाना है, हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी होती है, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन बाय बैग्स एंड ऑल दिस थिंग उधारों पे जस्ट बिकॉज उन्हें किसी किटी पार्टी पे अटेंड करनी है, सोशल पार्टी या ना। हम लोग देखें मदिया और हमारे बड़े कॉमन फ्रेंड्स हैं, मदिया और हम लोग काफी मिलते हैं, हम लोग बहुत अच्छी जगहों पे भी खाना खाते हैं,
ہم بہت ایسی جگہوں پہ بھی کھانا کھاتے ہیں جہاں پہ ہم صرف وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم گھروں پہ بھی بیٹھ کے کتنی دفعہ ملتے ہیں, ہم باہر بھی جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ صرف اس لیے ملتے ہیں کہ ہم لوگ اس مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ وہ اچھے سے مل کے بچوں کے ساتھ وہ خوشی منانا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے سوشی ہی آرڈر کرنی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کا سب سے مہنگا اسٹیک آرڈر کرنا ہے. اگر وہ ہمیں نہیں اچھا لگتا تو ہم باقی زندگی میں مڑ کے اس طرف نہیں دیکھیں. پراٹھا رول کھا کے بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں, تو اس میں اگلے کو دکھانے کیا شو مارنے کی ضرورت نہیں. اکثر لوگوں کو دیکھتے دسترخوان کرتے ہیں شو مارنے کے لیے نا, لوگوں وہ کریں جس میں آپ کو خوشی ہو. اور دیکھیں آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس وقت ابھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو وہاں مزہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا نا تو اگلی دفعہ مڑ کے نہیں, ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی جیسے ہم لوگ سب فرینڈز ہیں, یہ رافیہ ہمارے گروپ کا ہی حصہ ہے, بلکہ اس دن ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ اکثر یہ لوگ کافی پینے کے لیے جاتے ہیں, وہ ایک بڑا زبردست کافی کیفے ہو گئی, تو میں اکثر اسٹریٹ منع کرتی ہوں کہ میں 1800 روپے کی کافی نہیں پیوں گی, مطلب مجھے نہیں پینی. اور کیوں جا رہے ہیں ہم کسی گھر پہ گرین ٹی بھی پی سکتے, نہ پیئیں, ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پیئیں. تو بلکہ ہم لوگوں نے بڑے شوز کیے ہیں کہ سستے کپڑے بھی پہن کے ہم لوگ آئے ہیں اور بتائیں کہ ہم نے خریدے یہ. اور بالکل صحیح بات ہے کہ میں تیار بھی اپنے لیے ہوتی ہوں, مجھے اپنے شوہر کے لیے, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہونا ہوتا. مجھے خوشی ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کو پتا جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے ایک پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں جو ہر نیگیٹو چیز کو پازیٹیو کر دیتی ہیں. تو آپ کو کسی کو ضروری نہیں کہ کسی کو اچھا دکھائیں یا آپ اپنی چادر سے 4 گنا پیر پھیلا کے اپنے آپ کو تکلیف میں دیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ لوگوں سے پیسے ان کے ڈالرز کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کروائے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں, لیکن مجبور کر دیتے ہیں آپ کے رشتے, آپ کے دوستیاں, آپ کے امپلائیز, بہت لوگ ہوتے ہیں. پتہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لٹرلی اپنی جویلری بیچ کے اپنے دوستوں کو ادھار دے رہے ہوتے ہیں, میرے دوست کو ادھار چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے سارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی سارا, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بات کرنی تھی کہ جب کوئی آپ سے ادھار مانگے, دوست خاص طور پہ, تو بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ریلیشن شپ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ریلیشن شپ اب دونوں صورتوں میں ختم ہوگا. یا تو آپ دیں گے تب ختم ہوگا, اور نہیں دیں گے تب ختم ہوگا. تو مجھے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ریلیشن شپ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. آپ کسی نے ادھار مانگ لیا آپ سے, اچھا میں نے کئی ایسے لوگوں کو ادھار دیا تو انہوں نے کبھی بھی واپس نہیں کیا. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی ادھار دینا ہی نہیں ہے, چاہے دوستی ختم ہی ہو جائے, کیونکہ اب ختم ہوئے گی نا, ہر صورت ہو جائے گی. اچھا لیکن میں بتاؤں سارے دوست برے نہیں ہوتے, جیسے کچھ آپ کے ایسے دوست ہوتے جو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کو لگ رہا تھا یہ آپ کے جگری ہیں, وہ آپ سے پیسے مانگیں گے اور پھر آپ کو ایسے سے ان کی عادت کا پتہ چلے گا کہ ان کو پیسے اڑانے کا شوق ہے. کچھ آپ کے دوست جو جینوئنلی ضرورت میں ہوتے ہیں, ایک تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دوست ماڑا موٹا ہونا تو آپ خود اس کو کور کر لیں کہ کوئی بات نہیں, تجھے پیسے چاہیے تو فکر نہ کہ تیری بہن بیٹھی ہوئی ہے. کچھ دوست آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے پیسے سیکیور ہیں, اور وہ لوگ آپ کے پیسے, مطلب ہم کہنا یہ نہیں چاہ رہے کہ دوستی بالکل خراب ہو رہی تھی, یس لوگ برے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں کہ ان کو ضرورت ہو. اور اگر دوست ہی دوست کے کام نہیں آئے گا, کہ اگر میرے لیے لٹرلی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک موت کا عالم ہوگا کہ اگر میرا دوست پتہ نہیں کتنے سود پہ جا کے بینک سے کوئی ایک ایسی اماؤنٹ اٹھا لے جو میں اس کو ایزیلی دے سکتی ہوں, اور اس نے میرے سے نہ مانگے ہو, تو مجھے ہوگا کہ یار اس نے مجھے یاد نہیں کیا, اس کو ضرورت تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ لٹرلی اپنے کسی دوست کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ پاک اتنا آپ کو اس پہ بھی نوازتا ہے. اور آپ کا دوست, میرے کچھ ایسے بہت اچھے تجربات ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے ادھار واپس کیے تو مجھے نا, اور کیونکہ ٹائم سے پہلے واپس کیے تو میں گھبرا گئی. میں نے کہا یار تم ناراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی وہ ہو گیا, پیسوں کا ارینجمنٹ ہو گیا, میری سیلری آ گئی, میرا فلانا پلاٹ بک گیا ہے, تو میں پیسے بڑے آرام سے دے سکتی ہوں. اور کچھ سے لٹرلی میں نے, جو مجھے لگتا تھا میرے دوست ہیں, پہلے میں نے سوچا معاف کر دیتی ہوں, بٹ میں نے کہا نہیں, یہ میری حق حلال کی کمائی ہے. تو پھر ان سے نکلوانا, اور میں نے پھر کہہ کے کہ نکلوا بھی لیا, جو میری کہیں پہ ریکوری ہوئی اور کہیں پہ ریکوری نہیں, کیونکہ ہم جو نینیز وغیرہ کے جو ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تو نہیں. اچھا مدیہ, سارا کی بات بہت اچھی ہے کہ کچھ یا تو آپ کی اب تو دوستی ختم ہوگی, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو کلیئر کر دو کہ سنو میرے پاس نہیں ہے, اور یا میں ابھی ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے نہیں دے سکتی, جو کہنا تھا میں نے بتایا تھا نا کہ اپنا رونا ڈال دو, اور اس کو بول دو کہ دس شوڈ ناٹ افیکٹ آور فرینڈ شپ. اگر وہ افیکٹ کر رہی ہے فرینڈ شپ تو دیٹ فرینڈ شپ از ناٹ ورتھ اٹ. ہاں یہ مجھے اپنا یاد ہے کہ جب میں نے اپنا گھر بنا رہی تھی تو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اور میں ابھی بات گھر کی تو مجھے وہ ریکال ہوا کہ کیونکہ کچھ چیز آپ ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کبھی کچھ چیز ہو بھی سکتی ہے.
तो जहाँ आप इतने करोड़ों रुपए दे देते हैं घर के, तो 2-3 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं? कोई भी मायने नहीं रखते। तो मुझे याद है कि वो एंड टाइम पे टैक्स के नाम पे जो टैक्स हम पे करते हैं ना, वो पैसे मेरे पास ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत है कि मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है ये वाली बात कि मैं बड़ा खुददार किस्म का इंसान हूँ, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती। मतलब मैं अपना रख लूँगी, रोक लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी कि अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ तो मैं मना कर दूँगी कि मुझे नहीं जाना। तो मुझे याद है कि फिर मैंने अपनी खाला को कॉल किया था, तो मेरी खाला, मैं उनसे मांग रही, वो रो रही हैं। मुझे याद आया बल्कि मेरी थैंक यू कि उस वक्त उन्होंने मेरी इंस्टेंटली हेल्प की। उन्होंने अपने बेटे को घर भेजा कि उसको चाहिए, और जबकि हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उसके पैसे 1 हफ्ते के बाद आ गए थे, तो मैंने उन्हें दे भी दिए थे कि नहीं नहीं तुम रखो, तुम्हें भी काम होगा, तुम्हें भी पेंट कराना होगा, ये कराना होगा, तुम देना। लेकिन मुझे याद है कि कुछ ऐसे वक्त भी होते हैं कि जब आपके दिल में वो बात रह जाती है कि मैंने, और उनको ये खुशी हुई कि तुमने मुझे इतने लोगों में चुना कि मेरे पास मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तो ये सब हर कोई बुरा नहीं होता, आपको हेल्प कर सकता है। आपको बहुत जगहों पे आपके रिलेटिव होते हैं, उनके बच्चों की तालीम में प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे से उनको हेल्प कर देते हैं, और फिर आप उन्हें पूछते भी नहीं, और फिर आप भी देख के हेल्प करते हैं कि जब वो बड़ा इंसान बनेगा ना तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा सदका जारी है कि आप किसी की तालीम में आप बच्चों की किसी की फीस आप दे दें। अच्छा, वैसे आप लोगों को याद है आपने जिंदगी में पहला उधार कौन सी उम्र में दिया था? 7 साल की उम्र में अपनी बड़ी बहन को 300 रुपए उसने आज तक वापस नहीं अभी तक ताने देती हूँ मैं इसको। क्या मेमोरी है इनकी। वैसे ना मुझे मैं छोटी थी, मेरे बहन भाई को बहुत शौक था वो फिल्म्स लाके देखते, तो वो फिल्म्स किराए पे मिलती थी सीरीज वगैरह, तो मेरे पास ईदी हमेशा इकट्ठी होती थी, फिर उन्होंने मुझसे पैसे लेने होते थे तो मैं फिर उनको पैसे देती थी, तो वो खैर लेकिन इतनी महंगी तो किराए पे नहीं आती थी मेरे ख्याल से। हाँ 20-50 सबने इससे ज्यादा नहीं होती थी। हाँ, बिरयानी के लिए मैंने अपने बहन भाई को बहुत उधार दिया, भाई को स्पेशली। फिर मेरा भाई, मुझे याद है 125 की बड़ी जबरदस्त एक बिरयानी आती थी बड़ी सारी, तो मुझे 10-10 रुपए करके वापस मजा खत्म कर देता था। और मैं 125 एक बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो दिल कर रहा रात में, फिर कह रहे चलो बिरयानी खानी, उन्होंने कहा हाँ खानी बिरयानी, खाने को तो तुम दोगे, पैसे लाऊंगा मैं। हाँ नहीं, उधार दे दो, मैं तो बाद में दे दूंगा। अच्छा, उधार आपने भाई को दे दिया जी, बिरयानी आ गई, और उसके बाद आपने खा ली। फिर जब आप 2 दिन बाद कहें कि अब छोटा बच्चा तो पूछता है, तो मैं तो पूछती थी, और मेरा लिटरली दिमाग में रजिस्टर होता था दिमाग में रजिस्टर होता था। तो मैं कहती थी वो पैसे कब दोगे मेरे बिरयानी के? तो कहते क्यों तुमने नहीं खाए? ये अच्छा, एक और चीज़ भी बताओ, मैंने ये रमज़ान ट्रांसमिशन में ही देखा था कि जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको खुशी में पैसे देते हैं, उनके अकीके में पैसे देते हैं, बर्थडे है, कुछ भी जो उनके पैसे होते हैं, और माँ बाप उस पैसों को रख लेती है, स्पेशली माँ बैंक, जो माँ का बैंक, माँ भी बच्चों से उधार कर लेती कभी। हाँ, मेरी अब भी करती थी, और अभी भी ये होता है। अब दे दो जिमल से 100-200 रुपए ना जिमल के कहीं पॉकेट्स में होते तो हम ले लेते, फिर उनको वापस करते हैं। ये उनको देना है, इसका गुनाह है। मतलब ये आप बच्चे जो क्योंकि अंडर एज है, उनको समझ नहीं है। आप होना नहीं है, सही है, बस क्या हो गया 3-3 लाख 2-2 लाख रुपए की इनकी सालगिरह करना है, अगर उनके एक लिफाफे से 5,000 निकाल के किसी को टिप दे दी तो क्या करना है भाई? जो बात है ये आप कर रहे हैं, बेकार बिल्कुल बात नहीं करें। 3 लाख रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं सालगिरहों में, और उनके लिफाफे 2 खोल लिए तो उसमें कौन सा होना है? कोई गुनाह नहीं है। पहले गिफ्ट भी सस्ते आते थे, बेकार बात नहीं करें। ये मैं भी ऐसी सड़ी थी, तब की सारे पैसे जमा करके अब आईपैड चाहिए होते, फोन चाहिए होते, कहाँ से आएंगे? देना डॉल आप अपनी बच्ची को। अच्छा, सारे लोग कूद गए मुझ में। 1 मिनट समिया, जब तक बच्चों को सेंस नहीं है ना तब तक आप उड़ा लो उनके पैसे। अच्छा, ये बात नहीं, सेंस है भी तो कोई मसला नहीं है। नहीं, मेरी अम्मी ने मुझसे माफी मांगी थी, मंगवाई इस औरत ने। अच्छा, नवीद के तो बच्चों की मुझे पता है कि जो वो सालगिरह भी होती तो वो इतनी इन्वेस्टेड थी कि वो मनाल की जो तैयारियां शुरू हो जाती। मैंने केक बनाया मनाल का फर्स्ट बर्थडे। बच्चों के कॉस्ट्यूम पे इतने पैसे लग जाते, तो वाकई मेरे ख्याल से अगर माँ बाप बच्चों के पॉप डीमन हंटर की बर्थडे करने में हमारे हालत खराब हो जाती है, और वो कह रही है कि कोई उधार नहीं है, जो सालगिरह में पैसे आ रहे हैं वो मेरी रिकवरी है, जो मैंने पैसे खर्च किए। भाई मेरी बच्ची का ये है कि दिसंबर में होनी है, सितंबर से लिस्टें बनना शुरू हो जाती है। हम कितने अच्छे बच्चे थे, मुझे याद है बर्थडेज होती थी, फ्रूट्स आ गए, वो चिकन पैटीज आ गए, फ्रूट चाट बन गई, अच्छा सा केक आ गया, मिठाई, हम तो हर चीज में खुश हो जाते थे। वो टोपियां पहन के केक काट लेते थे, चमक वाली फनी सी टोपियां, वो जो पेपर सी टोपियां पहनते थे, वो अब तो टोपियां आ रही है 25,000 रुपए की। खैर भाई, बातों की एक बात, आपको सीखना चाहिए कि अगर आप और आपका इंस्टिंक्ट आपको बता रहा था कि किसी बंदे ने आपसे उधार अगर मांग रहा है ना, आपको वापस नहीं देगा, आपको सीखना है कि आपने नोस को कैसे बोलना है। ये आपकी हक हलाल की कमाई है, यू हैव ऑल द राइट टू से नो। और अगर किसी ने आपसे उधार ले लिया है या आपको लगे ना कि हाँ वाकई ज़रूरतमंद है, फिर तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक तू मुझे वापस कर दे, मुझे ज़रूरत है।
बट आप देख रहे हो वो बाकी सारी जिंदगी की आशियां पूरी कर रहा है, तो मैं कहती हूँ फिर उसके लिए बुखार बन जाए। अभी आप बुखार बाजी 104 उनको 104 बुखार 104 बल्कि इससे भी आगे, और आप उनको बार बार याद दिलाएं, और उनको मैं कहती हूँ अगर लोगों के सामने भी आपको शेम करें क्योंकि आपकी हक हलाल की कमाई है एंड यू ओ इट टू देम।